ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ ٹریڈ لائسنس اور پراپرٹی ٹیکس کے محکمہ جاتی اجلاس کا انعقاد، جہاں اجلاس کا مقصد ٹیکس ریکوری کے نظام کے مؤثر ہونے پر غور و خوض کرنا تھا، جبکہ ٹاؤن کے محکمہ جاتی افسران اور عملے نے ٹیکس کے نظام میں موجود مسائل اور چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر واجبات کی بروقت وصولی میں درپیش رکاوٹوں اور اس عمل کو بہتر بنانے کے طریقے زیر بحث آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ کسی بھی ادارے کی مضبوط بنیاد اس کے ٹیکس نظام پر قائم ہوتی ہے اور یہی وسائل عوامی خدمت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹریڈ لائسنس اور پراپرٹی ٹیکس کے محکمہ جاتی افسران اور عملے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن کے پارلیمانی لیڈر اور چیئرمین ٹریڈ لائسنس کمیٹی شیر محمد کاکر، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن محمد رئیسی، ڈائریکٹر پراپرٹی ٹیکس عاصم علی خان بھی موجود تھے۔ اجلاس میں ٹیکس ریکوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، واجبات کی بروقت وصولی اور اس عمل میں درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین منصور احمد شیخ نے ہدایات دی ہیں کہ ٹیکس ریکوری کے عمل کو مزید تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وسائل جمع کیے جا سکیں اور ان وسائل کو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس کی مد میں حاصل ہونے والی رقم کو شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے، صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے، انفراسٹرکچر کی ترقی اور دیگر بلدیاتی خدمات میں استعمال کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور اس کے ذریعے ہی علاقے کی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایات دی ہیں کہ عوام میں ٹیکس کی اہمیت کے حوالے سے آگہی مہم بھی چلائی جائے تاکہ لوگ خوش دلی سے اپنے واجبات ادا کریں۔ اجلاس کے اختتام پر چیئرمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صدر ٹاؤن کو ایک مثالی اور ترقی یافتہ علاقہ بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے پیپلز لیبر بیورو یونین بلدیہ ٹاؤن ڈسٹرکٹ کیماڑی کی زیر اہتمام عمرہ ادائیگی اور عید ملن پارٹی کے سلسلے میں ایک نہایت پروقار اور منظم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں تقریب کے دوران پیپلز لیبر بیورو یونین کی جانب سے معزز مہمانان گرامی کو عمرہ کی ادائیگی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز لیبر بیورو یونین بلدیہ ٹاؤن ڈسٹرکٹ کیماڑی کے زیر اہتمام عمرہ ادائیگی اور عید ملن پارٹی کے سلسلے میں ایک نہایت پروقار اور منظم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب صدر پی ایس 111 اور ٹاؤن چیئرمین بلدیہ جناب عبدالکریم آسکانی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن جناب حماد خان اور چیئرمین زکوٰۃ و عشرہ کمیٹی ڈسٹرکٹ کیماڑی جناب امیر علی خاص خیلی کے اعزاز میں منعقد کی گئی، جنہوں نے حال ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ تقریب میں ٹاؤن چیئرمین بلدیہ جناب عبدالکریم آسکانی، ٹاؤن وائس چیئرمین اور صدر پی ایس 113 جناب عجب خان سواتی، میونسپل کمشنر سالک نذیر بھٹو، زکوٰۃ کمیٹی چیئرمین امیر علی خاص خیلی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن جناب حماد خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پیپلز لیبر بیورو یونین ڈسٹرکٹ کیماڑی کے جنرل سیکریٹری حاجی ہارون بلوچ، جنرل سیکریٹری پی ایس 113 الہی بخش بلوچ، پیپلز لیبر بیورو یونین کے ذمہ داران، پیپلز یوتھ کراچی ڈویژن کے حسام شہداد، ماسٹر محمد علی، ٹی ایم سی افسران، ولی خان، فیصل نور، سینیٹیشن عملہ، ممبران اور پارٹی جیالے بھی موجود تھے، جس سے تقریب کی اہمیت اور بھرپور عوامی شرکت کا اظہار ہوا۔ تقریب کے دوران پیپلز لیبر بیورو یونین کی جانب سے معزز مہمانان گرامی کو عمرے کی ادائیگی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر انہیں سندھ کی ثقافتی پہچان اجرک اور پھولوں کے ہار پہنا کر عزت و احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا گیا، جو مقامی روایات اور محبت کا خوبصورت اظہار تھا۔ بعد ازاں ٹاؤن چیئرمین بلدیہ جناب عبدالکریم آسکانی نے اپنے خطاب میں سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ اور پیپلز لیبر بیورو یونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے اس موقع پر ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے حج کے لیے منعقدہ قرآن دازی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جن خوش نصیب افراد کے نام اس قرآن دازی میں سامنے آئے ہیں وہ مقررہ وقت پر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے مزید اعلان کیا کہ پیپلز لیبر بیورو یونین کی جانب سے ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کے ملازمین کی اپ گریڈیشن اور پروموشن سے متعلق پیش کی گئی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں اور غریب عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے اور اسی فلسفے کے تحت متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ملازمین کی اپ گریڈیشن کے لیے فہرستیں مرتب کی جائیں تاکہ اس عمل کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ ٹاؤن چیئرمین کے اس اعلان پر پیپلز لیبر بیورو یونین اور ٹی ایم
TMC बल्दिया टाउन के अमले ने भरपूर अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया और उनकी काविशों को सराहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। शुरका ने इस इकदाम को एक मुस्बत और मजदूर दोस्त फैसला करार दिया। तकरीब खुशगवार, पुरजोश और मुनज़्ज़म माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसके आखिर में पीपल्स लेबर ब्यूरो यूनियन की जानिब से शिरका के लिए पुरतकल्लुफ रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस खबर के साथ चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की लियाकताबाद मार्केट्स को कुशादा खूबसूरत बनाने की काविशें रंग ला रही हैं। नैरिंग सिनेमा के रोड से तजावुजात का खात्मा करके पेवर ब्लॉक्स और लाइट्स लगाकर खूबसूरत बना दिया। जहां चंद माह कबल सेवरेज का पानी बहता था और खरीदारों के गुजरने की जगह न थी, अब क्या सूरत हाल है, जानते हैं हफीज अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल। हम शहर कराची के अंदर तजावज़ात भी दिखाते हैं और ऐसी गलियाँ भी दिखाते हैं जहाँ सेवरेज सिस्टम ख़राब होता है। लियाकताबाद की ऐसी तजावज़ात से भरपूर गलियाँ माजी में हम दिखाते रहे, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैरिंग का ये अंदरूनी रोड है। नैरिंग का अंदरूनी रोड जो कि यहाँ देखता था, दोनों अतराफ़ तजावज़ात होती थी, दाएँ जानिब भी, इधर भी, सेंटर में भी लोगों के गुजरने की जगह नहीं होती थी। लेकिन जो लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन है फराज हसीब, उन्होंने जो इक़दाम किए, जो यहाँ तरक्याती काम कराया, ना सिर्फ ये पेवर ब्लॉक लगा के इसको खूबसूरत बनाया, बल्कि देख सकते हैं कि कितना खुला रोड ये हो गया है। दोनों अतराफ़ की जो तजावज़ात थी उसका खात्मा कर दिया गया है। सेंट्रल लाइन पर तजावज़ात थी वो खात्मा कर दिया गया है। ना सिर्फ लोग आसानी के साथ चल रहे हैं, बल्कि मोटरसाइकिल सवार हों वो भी जो है दोनों तरफ से आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और ये दुकानदार भी जो है इस बात को, जो है इस इक़दाम को, जो इस तरक्याती काम जो यहाँ कराया गया है, इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं। यहाँ दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि ये बनने से पहले रोड जो है यहाँ हम देखते थे कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ जो है गटर उबल रहे होते थे, ना सिर्फ बल्कि ये सड़क भी टूट फूट का शिकार थी, बल्कि सड़क बराए नाम थी, सड़क थी ही नहीं। यहाँ तो तजावज़ात इतनी थी दोनों तरफ और सेंटर के अंदर भी कि सड़क नज़र ही नहीं आती थी। यहाँ पर ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है उनका गुजरना, यहाँ पर ख़रीदारी करना, ख़रीदारी करके यहाँ से कहीं जाना निकलना इंतहाई मुश्किल दुश्वार होता था। लेकिन अब देखा है, मैंने दिखाया इस रोड को भी कितना खुला हो चुका है। लेकिन इसका सेहरा जो है किसके सर जाता है, यकीनन चेयरमैन है, नौजवान है लियाकताबाद टाउन के फराज हसीब, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, यहाँ विज़िट कर रहे थे, लोगों से मालूमात कर रहे थे। तो मेरी मुलाकात, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा फराज साहब, इसके सिलसिले में यकीनन एक ये बड़ा चैलेंजिंग काम था और बहुत सी मुखालफतें भी लेनी पड़ती हैं, इसके लिए रुकावटें भी आती हैं, तो यकीनन ऐसी रुकावटें भी आई होंगी और इसको किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया? लोगों की ख्वाहिश भी थी, दरख्वास्त भी थी कि इसको क्लियर कराया जाए। जी हफीज़ भाई, ये वो रोड है, नैरंग सिनेमा का रोड कहलाता है ये, और ये जमात इस्लामी के आने से पहले मीडिया का जीनत बना रहता था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेरे पास भी मीडिया की, जब मैं स्टार्ट में आया था तो उसमें आई थी ये चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन अगर आप देखें कि ये वो वाहिद रोड है लियाकताबाद का कि अगर आप वहाँ मेन रोड से देखेंगे तो आपको गुजर नाला जो है वो नज़र आएगा। 1,21,000 स्क्वायर फीट की ये रोड थी और इस रोड पे लेकिन मैं भी कई बार आता रहा हूँ और मार्केट के यहाँ पर कपड़ा मार्केट जो कहलाती है SM तौफीक रोड की, लेकिन इस रोड पे जो है ना बहरहाल बहुत बुरी सूरत हाल थी और बारिश के वक्त जो है और ज़्यादा सूरत थी। अभी लेटेस्ट लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी इसमें मैंने ख़ुद आके इस जगह का विज़िट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं था। और ये रोड जो है लोगों की डिमांड तो थी, लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है टाउन के पास इतना इख्तियारात, इतने वसाइल नहीं होते, तो हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि हमें जो है ये रोड अच्छा बनाना है। हमने इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा चबूतरे वगैरह थे उसको ख़त्म कराया, फिर इसके ऊपर जो है वो पहले कंक्रीट हुई है, कंक्रीट के बाद जो है फिर 80 mm का इसमें हमने पेवर लगाया ताकि ये रोड जो है एक अच्छी मेयार पे रहे। इसी तरह फिर आप देख रहे हैं कि लाइटों का इंतज़ाम जो है वो हमने करवाया। अभी हमारे UC चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बात कही कि इधर लाइटों का जो है वो और इंतज़ाम किया जाए ताकि हम उस पर जो है और बेहतरी कर सकें। यहाँ कोई दुकानदार हैं या UC चेयरमैन हैं इधर के, तो UC चेयरमैन साहब यहाँ क्या सूरत हाल थी? यकीनन जो है आप बड़ा टारगेट बनते होंगे लोगों की जानिब से, इलाका मकीन जो होते होंगे कि यार क्या सूरत हाल है, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, अब क्या उनके कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सड़क तकरीबन 20-22 साल बाद बनी है। 22 साल कबल भी ये जो सड़क बनी थी ये जब जमात इस्लामी की क़यादत थी उन्होंने ही बनाई थी। उसके बाद जब ये इलेक्शन हुआ उस वक्त तो सूरत हाल यहाँ पर ये थी कि
टखनों तक जो है सीवरेज का पानी हुआ करता था, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, अक्सर गाड़ियाँ भी उलट जाया करती थीं। तो इस सिलसिले में हमने ये सड़क बनाने के लिए जनाब फराज हसीब साहब टाउन चेयरमैन लियाकताबाद से दरख्वास्त की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पेवर ब्लॉक्स की एक अच्छी और सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं और इन्होंने बताया ये तकरीबन 1,22,000 स्क्वायर फीट की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी के अफराद भी खुश हैं क्योंकि ये मेन गुज़रगाह है। लियाकताबाद से अगर कोई बाहर निकलता है तो भी यही रोड इस्तेमाल करता है और हमारी यूसी में अगर कोई इन होता है तब भी यही रोड इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, अगर दुकानदारों की मैं बात करूं तो मैं दुकानदार से भी बात करना चाहूँगा और लेकिन उससे पहले मैं यहाँ लियाकताबाद की ख़ास जो खूबी कहते हैं यहाँ पर लेकर लियाकताबाद की दुकानों की होती थी कि दुकान ये वहाँ पर होती थी, मैं बताऊँ कि ये दुकान यहाँ होती थी, लेकिन इसके आगे पथारेदार जो है यहाँ तक होते थे। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर दुकान के आगे जो है बिल्कुल ये क्लियर है। तो यकीनन दुकानदार भी खुश होंगे इस बात से कि इस रोड को भी अच्छा बनाया गया है। क्या कहेंगे सर, अब कुछ है सहूलत ऐसी? नहीं, माशाल्लाह बहुत सहूलत हो गई, नहीं तो कीचड़ हो जाती थी, गंद मच जाता था। अब बहुत सहूलत, बहुत अच्छा हो गया, साफ सुथरा। बिल्कुल, अगर ये साफ़ सुथराई होगी तो ख़रीदार भी आएगा, सीवरेज का पानी नहीं होगा तो ख़रीदार भी दुकान तक पहुंच सकेगा। यकीनन इस दुकान के लिए दुकानदारी उसी सूरत में हो सकती है कि यहाँ पर सफाई का भी इंतज़ाम हो और आगे लोगों के ख़रीदार के आने के लिए, चलने फिरने के लिए, जाने गुजरने के लिए जगह भी होनी चाहिए। यकीनन यह चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का अहम इक़दाम है और ये मिसाली स्ट्रीट कह सकते हैं हम इस नहरिंग रोड को। इसी तरह के दीगर रोड जो हैं उसको भी बनाने के लिए वो ख्याल रखते हैं कि आइंदा जो है जो भी इनके पास वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर जो है जो रोड इस किस्म की सूरत हाल से जो माजी में ये दरपेश रही हैं उनको भी वो बनाएंगे। यकीनन नहरिंग के अलावा भी दीगर रोड जो है बनाए जाएंगे, वहाँ से भी तजावज़ात का खात्मा होगा, आवाम को सहूलियात मिलेंगी। जी बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ खबर का आगाज करेंगे जहाँ लियारी में मखदूश इमारत की छत गिरने का मामला पेश आया। लियारी टाउन इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर जिला इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करवा लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियारी में छत गिरने के वाकये के बाद लियारी टाउन इंतजामिया की दौड़े लग गईं। टाउन चेयरमैन इकबाल हंगोरो और म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू के कामों को शुरू करवा दिया। छत के गिरने के वाकये में एक शख्स जख्मी हुआ। टाउन चेयरमैन इकबाल हंगोरो का कहना है कि कमजोर और गैर महफूज इमारतों की तामीरात में संगीन खतरात मंडलाते हैं। लोग अपनी जानों की हिफाजत करें और मखदूश इमारतों में रिहाइश न रखें। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने कहा है कि टाउन इंतजामिया जिले इंतजामिया के साथ रेस्क्यू के कामों में मसरूफ है। मशीनरी अमला तैनात है। लोगों को इमारत से महफूज तरीके से निकाला जा चुका है। जिले इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए गैर महफूज ढांचा हटा दिया है और सूरत हाल को कंट्रोल किया है। ये वाकया वाज़ेह करता है कि बिल्डिंग कवानीन और हिफाजती जवाबित की खिलाफ वर्जी इंसानी जानों के लिए खतरा है। तमाम ठेकेदार और इमारत साज सिर्फ मंजूर शुदा प्लान्स और मेयार के मुताबिक काम करें। गैर कानूनी या गैर महफूज इमारतों की तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने कहा है कि अवामी तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह है, लेकिन जिम्मेदारी अब बिल्डर्स और मालिकान की है। किसी की जान से खेलना नाकाबिले माफी है। इस मौके पर SSP सिटी और लियारी के असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे। रेन एमरजेंसी के पेश नज़र मंगोपीर टाउन इंतजामिया मुतहरिक हो गई, जहां नालों की सफाई के कामों का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही, वाइस चेयरमैन राना आरिफ और दीगर अफसरान ने रेन एमरजेंसी के हवाले से मुख्तलिफ नालों का दौरा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेन इमरजेंसी के पेश नजर मंगोपीर टाउन इंतजामिया मुतहर्रिक नालों की सफाई के कामों का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही, वाइस चेयरमैन राना आरिफ और दीगर अफसरान ने रेन इमरजेंसी के हवाले से मुख्तलिफ नालों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सफाई के जारी कामों का जायजा लिया और मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी की कि नकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने के लिए काम में तेजी लाई जाए। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही का कहना था कि मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का काम जारी है ताकि
मुमकिन बारिशों के दौरान पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और शहरियों को मुश्किलात से बचाया जा सके। वाइस चेयरमैन राना आरिफ ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि रेन इमरजेंसी के दौरान तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाते हुए बर वक्त इकदाम किए जाएंगे। इंतजामिया के मुताबिक नालों की सफाई के साथ साथ दीगर निकासी आब के निजाम को भी फाल बनाया जा रहा है ताकि बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुयस्सर अंदाज में निपटा जा सके। काम का कहना है कि शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और बारिशों के मुमकिन असरात से महफूज रखने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी रहेगा। और मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र मरी टाउन इंतजामिया मुतहरिक, जहां नशेबी इलाकों में मसाइल के हल के लिए हंगामी इक़दाम तेज कर दिए गए। चेयरमैन मरी टाउन जनाब जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र आवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अज़ाले के लिए अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र मलिर टाउन इंतजामिया मुतहर्रिक नशेबी इलाकों में मसाइल के हल के लिए हंगामी इकदाम तेज कर दिए गए। चेयरमैन मलिर टाउन जनाब जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र मलिर टाउन के नशेबी इलाकों में आवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इकदाम तेज कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मलिर टाउन इंतजामिया ने फौरी तौर पर हंगामी इकदाम का आगाज किया है, जिसके तहत मरकजी शाहराहों को हमवार किया जा रहा है ताकि आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कायदाबाद, दाऊद चौरंगी और मलिर टाउन के दीगर नशेबी इलाकों के मरकजी शाहराहों के तफसीली दौरे के मौके पर किया, जहां उन्होंने सड़कों की बहाली और हमवारी के अहकामात दिए। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवामी मुश्किलात का इदराक करते हुए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं और मुतल्लिका अमले को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि काम में तेजी लाई जाए और मेयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गढ़ों पे गाढ़ा डालकर सड़कों की बहाली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बरसात के दौरान शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन मलिर टाउन ने इस अज़्म का इजहार किया कि नशेबी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजीद जामे मनसूबा बंदी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में बारिशों के दौरान इस नौइयत के मसाइल से बचा जा सके और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। और अब खबर शामिल करेंगे ज़ैन अली शाह की बहैसियत म्युनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन वापसी, जहां ऑफिस आने पर फूल बरसाए गए, हार और रिवायती पगड़ी भी पहनाई गई है। ज़ैन शाह का कहना था कि मोमिनाबाद टाउन के मुलाजिमीन, यूनियन और आवाम की मिलने वाली मोहब्बत का मशहूर हूँ। मोमिनाबाद टाउन के शहरियों की खिदमत का सफर जारी रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ैन शाह म्यूनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद का चार्ज मिलने पर मोमिनाबाद टाउन ऑफिस पहुंचे तो उन पर फूलों की बरसात कर दी गई। ज़ैन शाह को दोबारा म्यूनिसिपल कमिश्नर बनने पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। किसी ने रिवायती पगड़ी पहनाई, किसी ने हार पहनाए तो कोई फूल लाया। खुशी में मिठाइयाँ खिलाई गयी। ज़ैन शाह का कहना था, मोमिनाबाद मसाइल का गढ़ है, हमने महदूद वसाइल में जो काविशें की इसका सिला है, खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग आ पार्ट ऑफ जॉब, नौकरी का हिस्सा है। सरकारी हुक्मनामा पहले मिला उसको ओबे करेंगे, सरकारी मुलाजिम है। आगे भी मिला उसको भी ओबे करेंगे, सरकारी मुलाजिम है। तो मैं कोशिश करूँगा मिनिस्टर साहब की रिकमेंडेशन पे, मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मोमिनाबाद के लोगों को सर्व करूँ। उनके जो भी यहाँ पे मसाइल हैं, उनको जो म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे, उसको मैं बेहतर तरीके से सर्व करूं और तमाम तर लोगों का मुझे उसमें स्टेक होल्डर्स का, मुझे अपने एम्प्लॉइज़ का, जैसे कि आज ये इन लोगों ने एम्प्लॉइज़ ने मेरे और बिलखुसूस वाइस चेयरमैन ने जो वेलकम किया, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह की ज़ात 100% कोशिश करूंगा मैं कि मैं बेहतर से बेहतर सर्व कर सकूं एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर। देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो एक बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है और मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे डालते हैं तो वो भी सही नहीं है। कुछ बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची और मोमिनाबाद का हिस्सा होने के बाद हमारी भी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के बाहर ना खुद कचरा फेंकें, ना फेंकने दें। हम अपनी गली, जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं, इस तरह हम अपनी गली को भी साफ़ रखें। तो मसाइल हैं, लेकिन पहले भी हमने महदूद बजट में कोशिश की थी आवाम को डिलीवर करने की और अभी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको 100% डिलीवर करने की।
देखें जी, बड़ी ज़ात बड़ा नाम अल्लाह साईं का है, मेरे मौला का है, और मैं तो एक अदना सा मुलाजिम हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। नाम अल्लाह का बड़ा है, और ये सीट किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सरकारी सीट है। जैसी हुक्मनामा मिलेगा मैं आ जाऊँगा, जब हुक्मनामा मिलेगा जाने का मैं चला जाऊँगा। तो इंसान को कम से कम इस सीट पे इतना डिलीवर करना चाहिए कि लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अगर आज आप बकौल आपके लोगों ने मेरा अच्छा इस्तकबाल किया, तो वो कुछ ना कुछ मेरी यहाँ पे काविशें होंगी, कुछ ना कुछ मैंने डिलीवर किया होगा, तो लोगों ने मुझे इस्तकबाल किया। वरना एमसीज आते हैं, एमसीज चले जाते हैं, ये पार्ट ऑफ नौकरी है सर। इंशाल्लाह हम तवक्का रखते हैं कि ज़ैन शाह साहब दोबारा आए हैं, इनसे उम्मीदें वाबस्ता है हमारी, और तवक्का भी रखते हैं, मुतालबा भी रखते हैं कि जो 3 सालों में मोमिनाबाद टाउन में नहीं हुआ है, हमें उम्मीद है कि इसका इजाला करेंगे इंशाल्लाह। सब मिलके चेयरमैन और एमसी साहब और कौंसल के अरकान सब मिलके इंशाल्लाह मोमिनाबाद की तरक्की में किरदार अदा करेंगे, और जो इनकी महरूमियाँ हैं इनका इजाला करने की कोशिश करेंगे। बस उसी का तो नतीजा है कि आज हम इनके साथ बैठा हुआ है, और एक दफ़ा फिर इनको एक मौका मिला है। तो हमारे आपके तवसत से इनसे मुतालबा है कि इस टाइम से जो टाइम पीरियड इनको मिला है, इससे फ़ायदा उठाया जाए, और इसको हम इलाके की तरक्की के लिए और मोमिनाबाद टाउन की महरूमियत के ख़ात्मे के लिए हम अपने वसाइल बरोकार लाए और अपनी तवानाई जो इस्तेमाल करें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनियन है, हमारी पीपल लेबर ब्यूरो, उसके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हम जिम्मेदारान, मैं मुनव्वर सज्जाद, सदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, शहबाज शाह साहब मेरे जनरल सेक्रेटरी, अपना मंगोपीर टाउन के सदर, मोमिनाबाद टाउन के हमारे शानी साहब हैं, और पूरी टीम हमारे इंफॉर्मेशन और जनरल सेक्रेटरी मोमिनाबाद मुर्जा मुगल साहब हैं। इन सबको और पूरी हमारी मंगोपीर की जितनी यूनियन है, इन सब की तरफ से मैं ज़ैन शाह साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूसी वाइस चेयरमैन अब्दुल कबीर का कहना था, ज़ैन शाह के आने से एक बार फिर टाउन के तरक्याती कामों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अरकान कौंसल, मुलाजमीन, पीपल्स लेबर ब्यूरो, दीगर रहनुमा मौजूद थे जो ज़ैन शाह को मुबारकबाद देते रहे। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।